السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریل پاکستانی کافی اہم شخصیت ہے. ان کا تعلق چنیوٹ سے ہے. ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتا دی چلوں کہ ماشاءاللہ سے 140 سال سے زائد کر سے یہ لوگ بزنس سے منسلک رہے ہیں. خود بھی بزنس مین ہیں، لیکن ان کی خواہش بھی رہی، کوشش بھی کہ اپنے ملک پاکستان کے لیے کام کریں، جس کے لیے انہوں نے باقاعدہ سیاست میں حصہ لیا. اور یہ اپنی فیملی کے پہلے پولیٹیشین ہیں اور ان کا تعلق PMLN سے ہے اور ابھی یہ فیڈرل منسٹر ہیں میری ٹائم افیئرس کے. تو آج کے ہمارے ریل پاکستانی کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ تشریف لائی ہیں، بہت مجھے اچھا لگا. ساری ٹیم آپ کی آئی ہے. سر ہم آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. آئی نو آپ آل دا وے اسلام آباد سے آپ کی ٹریولنگ رہی ہے، لیکن آپ نے پھر بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی جب ہمیشہ سے بات رہی ہے، آپ نے ہمیشہ انہیں ٹائم دیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گی، اب سب جانتے ہیں کہ آپ نے سیاست میں کیوں قدم رکھا، کیا مقاصد تھے، کیا چیزیں تھے. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے سیاست میں قدم رکھا تھا، کیا وہ پورے ہوئے؟ جی، میں نے کوئی 7 قومی اسمبلی کے الیکشنز کنٹیسٹ کیے. اس سے پہلے میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے کئی الیکشن کنٹیسٹ کر چکا ہوں اور یہاں سے میکسیمم نمبر آف ووٹ لے کے پریزیڈنٹ بنا تھا 1987 میں، آج سے 37 ایئرس اگو. تو 31 سال سے میں قومی اسمبلی کے اپنے ہوم ٹاؤن چنیوٹ سے الیکشن کنٹیسٹ بالکل ایسا ہی ہے. یہی مقصد، اصل بات یہ تھی کہ جب سے شروع سے میں کاروبار پہ چائنا، کوریا، جاپان، ان ملکوں میں جاتا تھا نا، تو میں نے ان کی ترقی دیکھی کہ آہستہ 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 انہوں نے کتنی تیز رفتاری سے ترقی. اس وقت پاکستان سے کوریا نے تو جا کے پلاننگ لی 60s میں ہم سے نا، اور چائنا کی میں نے حالت دیکھی کہ وہاں نہ کسی کے پاؤں میں جوتی تھی، نہ کسی کے پاس کوئی کپڑا تھا، نہ ان کے پاس کھانے کا وافر تھی کوئی چیز، اور لڑکے اور لڑکی کا کوئی فرق نہیں تھا. ایسا ہی اب ہے. میک اپ تھا نہیں وہاں. اور میرے ساتھ 2 لڑکے 2 لڑکیاں بزنس پہ اگر بیٹھتے تھے تو کیونکہ ان کے بال ایک قسم کے تراشے ہوئے ہوتے تھے، ڈریس ان کے اوپر اوور کوٹ ہوتا تھا. تو اس وقت سے جو چائنا سائیکل ہوتے تھے، صرف کار نہیں تھی، کوئی کار نہیں تھی بالکل ایسا شہروں ہی. میں. تو اس وقت سے جو میں نے دیکھی ان کی ترقی، اور دوسرے ملکوں میں بھی، کوریا میں تو بھی. یہی ایک وجہ تھی تو جب میرے ذہن میں تھا کہ ہم اپنے ملک کو کیوں آگے نہیں بڑھا سکتے، اور اب دوسرے ملک اتنی تیز رفتاری سے بڑھ رہے ہیں. تو مجھے شوق تھا. میرے والد صاحب نے بھی منع کیا کہ سیاست ہمارا کام نہیں ہے، ہم کاروبار کریں. کہ میں نے والد صاحب سے بھی یہ کہا کہ نہیں، مجھے یہ عرض ہے، میری تڑپ ہے کہ ہم کیوں ہماری پالیسیز کو کتنا بہتر کیا جا سکتا ہے، ہمارے عام لوگوں کے حالات کس طرح اور بہتر ہو سکتے ہیں. تو یہ وجہ تھی. اور اب کیونکہ یہ تو 31 سال تو اسٹرگل میں ہی گزر گئے، ہر گلی محلے مجھے جانا پڑا، 7 الیکشن کنٹیسٹ میں نے کیے. اب یہ پہلی بار مجھے، اس سے پہلے بھی میرے پاس اچھی پوزیشن رہی. چیئرمین میں رہا اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا. وہ ایک ریکمینڈیٹری باڈی ہے، اس میں اچھی ہم نے ریکمنڈیشنز اور تجاویز دیں. لیکن یہ ایک ایسا مجھے عہدہ ملا ہے جس میں خود پالیسیز بنا سکتا ہوں، خود ڈیلیور کر سکتا ہوں. میں بڑا خوش ہوں. اچھا، یہی میرا اگلا سوال بھی تھا. جی ذہن میں یہ تھا کہ میری ٹائم افیئرس کی جب بات تھی تو میں آتے ہوئے یہی میرے ذہن میں تھا، میں سر سے ضرور سوال کروں گی کیسر صاحب سے کہ کیا وجہ تھی. کیونکہ عام طور پہ ہماری عوام کی کچھ ذہنوں میں بھی سوالات آتے ہیں کہ بھائی اگر یہ منسٹری دی گئی، یہ اہم ذمہ داری دی گئی ہے، تو کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں بلو اکانومی، سمندروں سے اس کا تعلق ہے نا. تو بہت کچھ اس میں دنیا نے یہ جو اپنی میری ٹائم سے بہت فائدہ لیا ہے. اور کراچی میں رہتا ہوں. کراچی سے ان کے تمام دفتر جو ہیں، زیادہ تر کمپنیاں جو ہیں، جیسے کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے، ہماری پورٹ قاسم ہے، PNSC ہے، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، اور فشریز کا سارا کام ہے، جو مچھلیوں کا سارا. اس کے علاوہ گوادر پورٹ ہے. تو یہ سب یہاں سے نزدیک ہے، اور اس میں بہت کام کرنے کے ہیں. جو ماڈرن بلو اکانومی ہے، وہ دنیا کے ملکوں میں بہت آگے بڑھ رہی ہے. تو میں اس لیے ہوں کہ اس میں کرنے کا ہے، اور چیلنج ہے ہمارے لیے، کیونکہ ملک ہمارا جس تکلیف میں ہے، اس میں جب تک ہم لوگوں کا روزگار نہیں بڑھائیں گے، ان کے آمدنی بڑھے گی، ان کے ہمارے یہاں مہنگائی کم ہوگی. اور یہ کاروبار اس کا ٹریڈ سے، امپورٹ اور ایکسپورٹ سے تعلق ہے. تو انشاءاللہ ہم پورٹس کی ڈیولپمنٹ میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے تو کچھ 1.25 مہینہ ہوا ہے اس منسٹری میں.
लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने, पोर्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करने को ये जो है ना, हम समझ रहे हैं कि टर्मिनल हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की महल वकू ऐसा है कि यहाँ से ट्रांसशिपमेंट हो सकती है दुनिया के दूसरे मुल्कों में। हमने अपनी जो ट्रेड है वो तो है, उसको भी हमने बेहतर करना है। यहाँ मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं कारोबारी लोगों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, क्योंकि मैं यहाँ तफसील से आपको नहीं बता सकता, मकसद है उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, अगले हफ्ते ही मैं आपको बताऊँ कि एक कंपनी हमारी जो दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो $1 बिलियन के लिए वो कहते हैं कि जी हम आपकी पोर्ट्स को यहाँ पे हमें आप टर्मिनल्स दें और हम ट्रांसशिपमेंट के लिए, तो ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और उनको जब ये पता है कि ट्रांसपेरेंट मैनर से यहाँ पे रुकेंगी नहीं इंशाल्लाह अब चीज़ें। सबसे मैं हुकूमत में मिनिस्टर्स एक दूसरे के साथ मिल के, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब मैं देखता हूँ कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने ख़ास तौर पे मुझे ये जो मिनिस्ट्री दी है जिसका तल्लक ट्रेड से है, जिसका तल्लक इंडस्ट्री से है, और जो कराची से लिंक्ड है, और काफ़ी बड़े बड़े इसमें मुआहदे तवक्को हैं, वो हम इंशाल्लाह रिज़ल्ट देंगे और जल्दी ही आपको लगेगा हर जगह मेहनत हो रही है। अच्छा सर, ये जिस तरह से आप, मैं ये भी बात करूं कि आप जो है हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी उसकी भी आवाज़ हैं। जाहिर सी बात है, बहुत पुराना ताल्लुक है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात आए और बड़े अहम प्रेसिडेंट रहे हैं, चीज़ें रही हैं, तो अब वो क्योंकि आपकी फैमिली है, दूसरी फैमिली है, तो उनका बताएं, उनका क्या फीडबैक है, उनके क्या तासुरात हैं, क्योंकि उनके लिए भी खुशी की बात है कि जाहिर सी बात है कि आपकी वो जो आवाज़ है वो हुकूमती सदा तक इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो चैनल अगर आपको मिल जाता है तो काम में, बिजनेस में, हर चीज़ में आसानी हो जाती है। मोना देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि मेरे ख़ानदान ने ना जो है, कराची से तो मैं आपको अपने बारे में बता चुका, मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर शेख यहाँ से गया बिज़नेस के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और लाहौर भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सबसे ज़्यादा वोट लेके ना इलेक्ट हुआ। और मेरा फर्स्ट कज़न मियाँ जाहिद असलम वो फैसलाबाद में बिज़नेस करता है, वहाँ भी लोगों ने उसको, तो हमारी फैमिली तो एक दूसरे से, ये इम्पॉर्टेंट ये है कि एक दूसरे से इंटरेक्शन, कॉन्फिडेंस एक दूसरे पे। अब फिर आप देखिए कि जब से मैं बनाऊँ, सबसे पहले फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मेरे एजाज़ में मीटिंग भी की और पार्टी की। अब कल कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री वो कर रहे हैं मेरे एजाज़, तो वो सब बड़े खुश हैं, जो आपने कहा खुशी का, और मैं भी उनको यकीन दिलाने करा रहा हूँ। अब हम स्पोर्ट में भी ना, पहले सिर्फ एक ट्रस्टी हुआ करता था कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का, मैं चाह रहा हूँ फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नुमाइंदे भी इसमें ट्रस्टी में शामिल हों, जाके पोर्ट की बेहतरी के लिए वो काम करें, ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी मिले, ताकि वो खुद फैसले करें। वो क्योंकि मैं उनको जानता हूँ लोगों को, तो फैसले करेंगे। और मैं आपको बताऊँ ना कि ये जो दुनिया में ये चीज़ें फैलती हैं, बिजनेसमैन एक दूसरे से रिलेटेड है, जिनके पास पहले टर्मिनल्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन नए कंपनियां, हमारे यहाँ दुबई की कंपनियां, अबू धाबी की कंपनी, नॉर्वे और डेनमार्क की कंपनियां वो इंटरेस्ट ले रही हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगी कि बिज़नेस कम्युनिटी भी खुश होगी, हम बिज़नेस में भी फ़रोग देंगे। और कास्ट देखें ना, इस वक्त जहाज़ हमारा जो भी आता है ना, इंपोर्ट का हो या एक्सपोर्ट का, वो 4-5 दिन लग जाते हैं उसकी माल की क्लीयरेंस में और मुख्तलिफ उसके मराहल तय होते हुए। दुनिया की दूसरी पोर्टों में 2 या 3 दिन लगते हैं। तो जहाज़ अगर ज़्यादा खड़ा रहेगा तो उसका किराया बहुत ऊपर हो जाएगा ना, उनकी कास्ट बढ़ जाएगी, महंगाई हो जाएगी। तो हम पूरी, अभी मैं ये कोई दावे तो नहीं कर रहा, लेकिन हमारा उस तरह तवज्जो है, रुझान है कि हम किस तरह दूसरी पोर्टों की तरह हम अपनी पोर्ट्स को, कराची एक बहुत पुरानी और बड़ी अच्छी पोर्ट है। बिल्कुल। अब उसका कल मेरी एक डिटेल मीटिंग हुई, मैंने कहा क्यों केपीटी कमाई इतनी ज़्यादा नहीं कर रही। कराची पोर्ट जो हमारा पोर्ट कासम है, उसमें हमने लोगों को ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स पे रखा है, तो वो, और यहाँ ये पुराना सिस्टम चल रहा है, उनकी तनख्वाहें हैं बड़ी बड़ी, उनको मुख्तलिफ मराद दी जाती है। मराद दें, हम ज़रूर देंगे, मराद में कमी नहीं करना चाह रहे, लेकिन काम भी लेना चाह रहे हैं ना साथ, कि काम में भी वो एफिशिएंसी अपनी दिखाएं। क्यों ऐसा है कि एक ही पोर्ट कराची की उन्होंने 4-4.5 साल में 150 अरब रुपए कमाया है, और कराची पोर्ट ट्रस्ट जो है वो पिछले 2 सालों में सिर्फ 7 अरब रुपए कमा सकी है। और सर, मैं आपकी बात को एक और अपनी भी राय देना चाहूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका इदारा जब तरक्की करेगा, आपका एम्प्लॉय जो काम करने वाला, उसकी भी चीज़ों में जो है वो
ग्रोथ होगी वो भी आगे बढ़ेगा, ये भी सोचने की बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है इदारे से तो उसका रिस्क मुंसलिक है, तो वो सिंसेरिटी लाजमी होनी चाहिए। तो हम कराची पोर्ट से ज़रा गवादर पोर्ट पे भी आना चाहिए, क्योंकि मैं विजिट कर चुकी हूँ और वो बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 3 साल या 4 साल हो गए, और वो उस वक्त की बात है कि मैंने देखा था, मैं खुद हैरान रह गई थी कि मैं तो कहती थी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को क्या क्या अता किया हुआ है। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, जबकि मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, चीज़ें नहीं हूँ, लेकिन इतनी सूझबूझ अकल ने मुझे अल्लाह ने दी है कि वाकई आप जो बात करते हैं ना, आपने शुरू में कहा मैंने सियासत में इसलिए कदम रखा कि हम भी किसी से कम नहीं है और हमने डिलीवर करना है, और अल्लाह ताला ने आपको वो मौके भी अता किए। तो मुझे गवादर पोर्ट के मुतालिक बताएं जी, मुझे गवादर पोर्ट के मुतालिक बताएं कि वहाँ पे आपकी, क्योंकि वहाँ पे भी आप बड़ा फोकस नहीं करें, यहाँ से फिर आपका सिलसिला वहाँ से भी होगा, किन चीज़ों की जानिब आप जो है कि कुछ हम आपके मुआहदे होंगे, कुछ एग्रीमेंट्स होंगे जिन पे आप फोकस भी हैं कि इंशाल्लाह ताला इसको भी जो है बहुत आगे लेके जाना है। गवादर पोर्ट में मैंने भी कुछ दिन पहले जाके वहाँ गया था। उस ख़ास तौर पे ना जो हमारी अल्लाह का की तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि उसकी जो डेप्थ है ना वो बहुत ज़्यादा है, और डेप्थ की वजह से बड़े बड़े जहाज़, यहाँ हमें अभी ड्रेजिंग करनी पड़ रही है ये पोर्ट कासम में और केपीटी में, उसकी डेप्थ जो है इतनी कम है उनके मुकाबले। गवादर एक नेचुरल पोर्ट है, डेप्थ है। अब वो ख़ास तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा है कि आप गवादर पोर्ट विज़िट करें, और अगले चंद दिनों में मैं जाऊंगा दोबारा, और वहाँ हमने देखना है कि हम उस पोर्ट को किस तरह ज़्यादा तरक्की दे सकते हैं। बलूचिस्तान हमारे बिल्कुल करीब है, हमारे दिल के बहुत नज़दीक है, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी मिनरल्स हैं, वहाँ पे इतना बड़ा इलाका है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि उसको हम डेवलप करें और बलूचिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का प्रायोरिटी है। मैं आपको ये बताऊं, मैं खुद भी इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन के अंदर मैं खुद जा रहा हूँ वहाँ गवादर, और गवादर में बाहर के अभी चाइनीज़ यहाँ आए हुए हैं काफ़ी, मुझे 2 बार वो मिल चुके हैं इत्तेफाक से। वो चाइनीज़ जो थे उनका वो गए तो उनके ख़िलाफ़ एक्सीडेंट वो ये आप देख रही हैं जो हादसा हुआ, तो हमने वो भी ठीक करना है इंशाल्लाह, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल भी ठीक करनी है। और गवादर तो हमारे लिए एक इतना अच्छा तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से, नेचुरल पोर्ट है, इसको हमने फुल डेवलप करना है और हमारी प्रायोरिटी है। और उसमें जो है ना बड़ी बड़ी कंपनियां बिल्कुल इंटरेस्ट लेंगी उसमें भी, और बेहतर कर रहे हैं उसको जी। जैसे आपने ब्लू इकोनॉमी की बात की, तो जिस तरह से डायरेक्ट ट्रेड की बात है, मैंने जाहिर सी बात है, मैंने कहा आई एम नॉट द टेक्निकल पर्सन बट स्टिल मैंने देखा कि रशिया की जाने से भी डायरेक्ट वो जो है आपकी वो एक्सपोर्ट वाली बात शुरू हुई, क्योंकि डायरेक्ट मुआहदे होते हैं, ट्रेड डायरेक्ट शुरू हो जाती है, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी हुई है। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जिस पे जो दीगर आप बड़े फोकस्ड हैं कि नहीं इनके साथ जो है आगे वाले दिनों में, जैसे यूएई के साथ है, दीगर हमारी और भी कंट्रीज़ हैं कि इनके साथ किया जा सकता है, पाकिस्तान लॉन्ग टर्म जो है वो उनके साथ चल सकता है, चाइना के साथ तो है ही है। तो आप किन कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि किया जाए, क्योंकि आप अपनी फील्ड के लिहाज से आप एक्सपर्ट भी हैं, बिजनेस के लिहाज से जानते भी हैं कहाँ से बिजनेस करना है, कहाँ से ट्रेड करनी है, कहाँ से पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। देखिए पाकिस्तान ने तमाम ममालिक से ट्रेड करनी, जो हमारे नज़दीक के रीजनल कंट्रीज़ हैं ना, देखिए वहाँ ट्रेड ज़्यादा आसान होती है कि वहाँ पे आपका फ्रेट, आजकल दुनिया में फ्रेट बहुत बढ़ गए, ऐसा ही। तो हम अपनी एक तो PNSC अपनी शिपिंग कंपनी जो हमारी है उसमें हम कोशिश करें कि अपने हमारे जहाज़ हों, ताकि जो फ्रेट लगता है ना वो डॉलर में हमें पे करना पड़ता है, हमारे अपने जहाज़ होंगे तो हम वो किराया कुछ हद तक उसमें फ़ायदा ले सकेंगे। फिर जो आपकी नज़दीक के जो आपके कंट्रीज हैं, जैसे आपने दुबई देखा और अबू धाबी देखा, कतर का है, सऊदी अरेबिया आपके यहाँ आप देखें ना, पिछले 1 ही महीने में हमारे पूरा एक वफद गया, उम्रा पे भी हम गए और मुलाकात भी हुई शहजादा जी सुल्तान से। तो बात ये, वो फिर उनका एक वफद आ चुका है यहाँ पे, मोहम्मद बिन सुल्तान ने, उन्होंने एक वादा किया था उस वक्त भी शहजादा ने कि हम आपके पास जल्दी वफद भेजेंगे। वो वफद आया, उन्होंने $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की है। एक रिफाइनरी वो पहले कह चुके थे, वो ये भी कहते हैं कि हम पेट्रोकेमिकल्स में भी इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी पेट्रोकेमिकल्स पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है, तो वो कहते हैं हम डायरेक्ट वहाँ से एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो इसके अलावा आप देख रहे हैं अमेरिका से हमारे तल्लुकात पहले से बहुत बेहतर हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, जो आप एक टेलीफोन का इंतज़ार किया जाता था, अब ख़ुद उन्होंने मैसेज भी भेजे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी कहा है कि हम तल्लुकात को इस्तेमाल करना चाहते हैं। चाइना से हमारे पहले ही ट्रेडिशनल बहुत अच्छे तल्लुकात। मैं चाहता हूँ कि अपने पड़ोसी मुल्कों से भी हमारे तल्लुकात इस्तेमाल हों, क्योंकि दुनिया में ट्रेड जो है ना आजकल रीजनल ट्रेड ज़्यादा होती है। तो ये और अभी बांग्लादेश का पिछले हफ्ते
उनका नेशनल डे था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ना मुझे उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे ना नॉमिनेट किया। मैं उनके नेशनल डे का फंक्शन मैंने अटेंड किया और मैं देख रहा हूँ कि हमारे तल्लुकात पुराने उनसे तल्लुकात हैं और बाई सी लेवल उनकी चिटागांग पोर्ट है, कराची पोर्ट है, हम ये इस्तवार करेंगे यहाँ। हम वो डायरेक्टली मेरी मिनिस्ट्री से तल्लक है। उनके हाई कमिश्नर ने भी बड़े अच्छा खुशी हुई उसको ये बात सुन के। तो हम ब्लू इकानमी को कर रहे हैं। फिर हम सोच रहे हैं कि हम कोई जो है ना फेरी सिस्टम करें यहाँ से कोई दुबई तक, और इवन ये भी पॉसिबल है कि पहले सऊदीया में लोग हज पे जो जाया करते थे बहरी जहाज़ से जाते थे, वो फिजिबिलिटी उसकी देख रहे हैं कि क्या फिजिबल है, क्या कास्ट में कोई रियायत होगी, उस पर भी हम स्टडी करेंगे। कुछ अपने जहाज़ हमारे यहाँ पे आप शिप ब्रेकिंग भी हमारी मिनिस्ट्री में है, क्योंकि जिस जगह लेबर बेहतर है या टेक्नोलॉजी कुछ है तो उस जगह वो जहाज़ आते हैं। मुझे डेनमार्क और नॉर्वे के एम्बेसडर्स ने भी कहा है कि हमारे पास भी जहाज़ हैं और आपको हम टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपके हाँ वो ये सनत जो है बढ़ सके, क्योंकि हमें ज़रूरत है। हमारी शिप ब्रेकिंग कामयाब होगी तो उसमें स्टील इंडस्ट्री का काफ़ी मवाद हमें मिलता है, काफ़ी चीज़ें हैं उसमें। मसाइल होते हैं, इट टेक्स टाइम, तो क्या कहेंगे वो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी चाहेंगे कैसे सब हमारे पास भी आए चीज़ें। जाहिर सी बात है हुकूमती मामलात होते हैं, ट्रैवलिंग होती है, मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारा आपको टाइम जो है आप उस जगह देना पड़ता है जहाँ पे आपका ऑफिस होता है, तो क्या कहेंगे? मैं राब्ते में तो हूँ लेकिन उतना उस तरह का मेरी कोशिश ये है, वहाँ मैं जाता हूँ ना तो खुली कचहरी करता हूँ। कुछ तो वो मेरे से प्यार करते हैं क्योंकि मेरे साथ उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो जो है ना वो समझते हैं कुछ किसी हद तक, लेकिन बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत है। अब लोगों को कितना अर्सा, अभी वो ये तो समझ रहे हैं कि थोड़ा दिन हुए हैं, लेकिन हमें जल्द से जल्द रिजल्ट देने पड़ेंगे ना हर इलाके में। चिन्योट के लोग भी इसी तरह है। हम अपने पास से अपने हमारे यहाँ, क्योंकि काफ़ी मेरे कोलीग जो है ना वो सोशल वर्क में हिस्सा लेते हैं हॉस्पिटल्स में और जो एजुकेशनल इदारों में, वो मुझे काफ़ी रिलीफ हो जाती है उससे। लेकिन उसके साथ साथ हमें प्रैक्टिकली हुकूमत को अब रिज़ल्ट देना पड़ेगा और हमें जॉब्स लोगों को देनी है अच्छी तरह। क्यों, क्या वजह, पाकिस्तान अमीर होगा तो तब ये मामलात होंगे। देखिए आज हमारी 1990 में इंडिया की इकानमी सिर्फ 4 गुना थी हमसे। आज हमारी इनकम टोटल सब 24 करोड़ या 25 करोड़ लोगों की 370-80 अरब डॉलर है और इंडिया की कोई 4000 अरब डॉलर हो गई, 11-12 गुना उनकी 12 गुना हो गई है। तो देखिए हमारी आमदनी बढ़ेगी, हम लोग झगड़ेंगे तो नहीं बढ़ेगी। अगर हम आपस में मिल के, मैं ये नहीं कहता कि किसी के जो हकूक़ है उसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ये लाजमी है कि हमें बैठ के एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ पाकिस्तानी होने के नाते हमें, और वो लोग जो है वो तवक्कुआत उनकी बिल्कुल हैं, वो मेरे से गिला भी करते हैं। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि किस तरह वो तवक्कुआत भी पूरी हों और अपने मुल्क में असल काम जो मेरे ज़िम्मे है इस वक्त, वो काम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो करूँ। वो ये समझते भी है कि कैसर साहब जो है वो मुल्क के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा कैसर साहब, आपने वो ताल्लुक अवाम के साथ वो जो एक सिलसिला है ना राब्ते का, वो बरकरार रखा है? मुझे मोना आप दुरुस्त कह रही है, मुझे असल में उनसे फीडबैक भी मिलते हैं ना। मेरा एक नंबर पिछले 25 साल से एक ही नंबर है। आवाम जो है ना फीडबैक मुझे देती है, वो मुझे फ़ायदे की बात है, वो मुझे बताती है कि क्या मामलात हैं, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस से बात कर सकता हूँ। मैंने कुछ अपनी, हालांकि मेरा एग्रीकल्चर से मेरा तल्लक नहीं, लेकिन मैंने खुद अपनी कोई ज़मीन वहाँ पे ली और वो मैं खुद जाके देखता हूँ कि किस तरह, क्योंकि ताकि मुझे तजर्बा हो कि एग्रीकल्चरिस्ट के क्या प्रॉब्लम है। बहुत बड़े प्रॉब्लम थे उनके, अब उनके मामलात भी हमने हल करने हैं, हमने इंडस्ट्रियलिस्ट के भी करने हैं, ट्रेडर्स के भी करने हैं, जो भी लैंड ओनर्स हैं, कोई भी ये आप देख रही हैं कि बिल्डर्स हैं। तो ये इंशाल्लाह, और अपनी मेरी मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, मैं बिल्कुल मशकूर हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ। और अपने मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, और मैं ये समझता हूँ कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मिल के चलना है, यानी जो जुडिशरी है उनके लिए, तो हम सब मिल के पाकिस्तान तरक्की कर सकते हैं। तमाम पॉलिटिशियंस हों, बिजनेसमैन हों, ब्यूरोक्रेट हो, जुडिशरी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, सब मिल के काम करेंगे तो, और यही होगा इंशाल्लाह। हमारी देखने वाली आवाम से भी मैसेज में ये दें, ये बात बोलें, ताकि वो उनके दिल पे जाके असर भी करे कि अपने मुल्क की कितनी यहाँ पे हमारा मुल्क जो है ना वो इतना अच्छा मुल्क है, इतना हमने यहाँ से, लेकिन बात ये, मैं ये भी चाह रहा हूँ कि जो गुर्बत है ना,
यानी हम और लोगों को फ़ायदे पहुँचाएं, उसके फ्रूट्स पहुँचें। सिर्फ अमीर आदमी ना ले, मैं बड़ा तनकीद करता रहूँ, आपने मेरे प्रोग्राम देखे होंगे ऐसा ही कि है। $3 बिलियन का जो टर्फ दे दिया गया PTI की हुकूमत में, $3 अरब का, वो चंद 130-40 अमीरों को दिया गया। मैं खुद उस क्लास से तल्लक रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी क्लास की मुखालफत कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि क्यों भाई, बाकी ये कर्जा सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान का कुल 6%, 100 में से 6 दरमियाने और छोटे को दिया जाता है या काश्तकार को दिया जाता है। वो भाई कर्जा दोगे तो वो अपना मुल्क, अपना कारोबार डेवलप, हर कोई हुकूमत की नौकरी तो नहीं कर सकता ना जी। ऐसा हर कोई है। कह रहा है मुझे फौरन तौर पे गवर्नमेंट जॉब दे दे, गवर्नमेंट का अभी वो रिसोर्सेज नहीं रहे। तो हमें चाहिए कि हम कर्जे दें। ऐसा इंडिया, आपने बांग्लादेश में देखा होगा, ग्रामीण बैंक ने लेडीज़ को दिया ना, तो कितना कामयाब हो गए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके लोग बड़े मेहनती हैं। पाकिस्तान जैसे यही लोग बाहर जाके बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं और बड़े बेहतर कारोबार कर रहे हैं। हम इनको पहले ट्रेन भी करें, हम ट्रेन करें बाकायदा, और फिर उनको कर्जे दें अच्छे टर्म्स पे। तो और फिर उनको समझाएं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाहर जो जाते हैं वो तनख्वाह वो डबल भी ले लेंगे या 3 गुना भी ले लेंगे, तो उसको मुल्क अपने जैसी तो सहूलतें नहीं मिल सकती ना। तो इंशाल्लाह हम, आप दुरुस्त कह रही हैं मोना, मैं इस आपके तवस्सुल से अपने बच्चों को, यंगस्टर्स को इन पर्टिकुलर समझाना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है और इसी मुल्क को हमने आगे बढ़ाना है और दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क बनाना है। इंशाल्लाह G20 में पहले 20 मुल्कों में हमारा इरादा है कि अगले डिकेड में या 15 साल में हमारा मुल्क G20 में आ जाए। इंशाल्लाह। वो हम आपकी जो दिल से आवाज़ है, जो हमारी भी बहुत सारी दुआएं, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान जो मुल्क है हम सबका है, बहुत आगे जाएगा। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके वक्त के लिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके लिए भी। जी नाज़रीन, ये हमारे रियल पाकिस्तानी कैसर अहमद शेख साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और मैं आज आपसे एक बात, अपनी दिल की बात शेयर करना चाहूँगी। मैंने जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखे, ज़्यादातर वो जब भी पाकिस्तान में लैंड करते हैं, आप यकीन माने वो एक ठंडी आह भरते हैं, सुकून का सांस लेते हैं कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान आ गए। आप हम जितनी भी तनकीद करें, लेकिन सुकून, जितनी खुशी हमारे मुल्क में वापस आके होती है वो कहीं नहीं होती, क्योंकि ये मुल्क हमारा है और हम सब ने मिल के इस मुल्क को बहुत आके लेके जाना है। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।